Sachin Pilot has now hit back at the Prime Minister. Sachin Pilot has said that the BJP need not worry about me. That's the claim that Sachin Pilot has made. मेरी चिंता मेरी पार्टी मेरी जनता करेगी। हम उसके प्रति समर्पित हैं और विचारधारा को लेकर हमारा जो संघर्ष है उसमें हम लोग जीत कर आएंगे और देश भर में कांग्रेस पार्टी विजयी बनकर आएगी। पीएम मोदी साहब को तो लगता है कि आपका नाम लिए बिना चैन ही नहीं पड़ता था, नींद भी नहीं आती होगी, तो अब उनको नींद आएगी क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया। देखिए, कल मतदान होगा और जो भी परिणाम आना है वो किसी के कहने से आने वाला नहीं है। मतगणना 3 तारीख को होगी और सब पता पड़ेगा कि किसका भाषण ज़्यादा प्रभावी था, कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था। जनता ही पोल खोलती है, पोलिंग के माध्यम से बहुतों की पोल खुलेगी। तो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता पड़ेगा कि कौन सही था कौन गलत था। बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत बात करने के बजाय सैद्धांतिक बात हम करें, आरोप लगाने के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखें और दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी रिपोर्ट का जनता के बीच में लेकर जाएंगे, वो एक बेहतर तरह की राजनीति होती है। मैंने कल भी Well, we're joined right now by both Pragya as well as Bhavar, who are, of course, monitoring all the developments and the build-up to the big day tomorrow very closely in Rajasthan. Pragya, coming to you first. Now, the Prime Minister has, of course, spoken about Sachin Pilot and how he's been sidelined by the party in the same way that Rajesh Pilot had been in 1997 when he contested against Sitaram Kesri for the post of Congress President. It's a very interesting parallel that the Prime Minister appears to have drawn here for the simple reason that nobody can dismiss the fact that the Congress party has been ravaged by infighting within its ranks in the year 2020 when Sachin Pilot had waged that rebellion against Ashok Gehlot. Absolutely, and caste plays a very important and vital role in Rajasthan politics. And in fact, BJP believes that Gujar votes had been a traditional vote bank of the BJP, but because Congress projected sort of, in fact, promised that if they win this time, Sachin Pilot is going to be the chief minister. This was the larger message in the Gujar community. That is why whole of the Gujar community, transferred their votes to Congress last time. But this is not happening this time. BJP believes that their bluff has been called out. Now everyone knows, irrespective of who wins, Sachin Pilot is not going to be the chief minister candidate or face. If in fact Congress wins, he's not going to be given that post in the Congress. So that is why BJP believes that they can take their traditional vote bank back, and this will obviously dent the chances of Congress in the state. There are 8 to 9% of Gujar votes, and they impact 30 to 35 seats at least in the state. Basically, this caste politics, we are seeing this is the last hour message before the polling starts tomorrow. This is the larger message that is being sent from both the sides to the Gujar community, while BJP says that they have insulted and they'll never give the chance to power to someone of a Gujar community. Congress also hit back at the BJP saying that in fact it is they who disrespect, and we know who the Gujar community is with. But BJP believes that this time they are seriously banking on the support of Gujar community this time, which had been a traditional vote bank of the BJP. Absolutely. Let me take this across to Bhavar as well, who's joining us from Jaipur. Bhavar, ऐसे तकरीबन 40 या 45 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है राजस्थान में जहां पे गुज्जर कम्युनिटी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, और 34 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस राज्य में जहां पे दलितों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की हैं, दलित कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो डबल अटैक आया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कल के इलेक्शन के पहले। देखिए, एक तीर से 2 निशाने वाली बात ये सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर 2 निशाने साध दिए। आप देखिए, दलित वोट बैंक जो एक बड़ा वोट बैंक राजस्थान का है, और गुर्जर वोट बैंक जो पिछली बार बीजेपी से खिसक गया था, और आप देखिए कि सरकार बनाने 21 सीटों से 100 तक वो ले गया कांग्रेस को, और सरकार बनाई कांग्रेस ने। और आप देखिए 2018 का जो चुनाव, पिछला चुनाव जो हुआ था, उस चुनाव में एक भी प्रत्याशी बीजेपी का जो गुर्जर कम्युनिटी से था वो विधानसभा नहीं पहुंचा। लिहाजा यहां गुर्जर कम्युनिटी का वोट बैंक बहुत बड़ी ताकत बीजेपी के साथ जुड़ सकती है, क्योंकि पहले ये कोर वोट बैंक बीजेपी का था, लेकिन एक सपना दिखाया गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो पूरा का पूरा जो वोट बैंक था वो बीजेपी से खिसका और कांग्रेस के पाले में चला गया। सरकार कांग्रेस की बनी, उप मुख्यमंत्री बने सचिन पायलट, लेकिन जो झगड़ा 5 साल तक चला और फिर ऐसे ऐसे शब्द सामने आए, जैसा कि राजेंद्र राठौड़ बता रहे थे कि एफआईआर भी दर्ज हुई थी, तो ऐसे में जो आपस की खींचातान जो कांग्रेस की रही,
उसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी ये फायदा उठाने की कोशिश में है कि जो नाराज वोट बैंक है, गुर्जर नाराज वोट बैंक, कि हमें ये कहकर हमसे वोट तो ले लिया कि सीएम बनाया जाएगा पायलट को, लेकिन बनाया नहीं गया। बीज किसी और ने लगाया, फल किसी और ने खाया, इस तरह की बातें चली और जो नाराजगी गुजरों में थी वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी कैश करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके जो गुर्जर कैंडिडेट्स हैं और जो गुर्जर वोट बैंक है वो दोनों जीत के पाले में उनको ले जा सकें। वहीं दलित वोट बैंक की अगर बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर नहीं होने की बात को लेकर भी एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।